Yes, children. Yes, children. Today we are going to start with the features of the childhood. This we will see the features of the early childhood as well as the late childhood. Before that, we will see the growth and development. What is growth and what is development? First of all, we'll start with this. Growth and development are complementary processes. Growth indicates the quantitative changes in the body which can be measured like your height and weight. Okay? Growth means to grow. It indicates increase in the physical body dimension. Growth starts in the womb after the conception and reaches its completion after the individual becomes adult. And these are physical and the creative changes which are quantitative in nature. ठीक है, जो ग्रोथ है जब बेबी आपके मदर के स्टमक में फीटस की फॉर्म में होता है तभी से स्टार्ट हो जाती है और ग्रोथ आपकी तब तक चलती रहती है जब तक एक पर्सन एक अडल्ट पर्सन में चेंज नहीं हो जाता और ये आपका क्वांटिटेटिव नेचर की होती है और इसको हम मेजर कर सकते हैं लाइक योर हाइट एंड वेट. Okay, then comes your development. Development refers to both quantitative and qualitative changes. Development is a progressive change the child undergoes which increases the physical, social, mental and emotional capabilities of the child. Okay? And is in the early stage of life, these changes are constructive, and after the middle age, there are destructive changes in the body which lead to the old age. डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से होता है ना. और इसमें केवल फिजिकल चेंज नहीं होता है बट साथ साथ आपका फिजिकल चेंज के साथ साथ सोशल, मेंटल एंड इमोशनल कैपेसिटीज भी आपकी चाइल्ड की बढ़ती हैं. और उन्होंने कहा कि शुरू में तो ये चीजें कंस्ट्रक्टिव होती हैं, चीजें बढ़ती चली जाती हैं और जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो कुछ चीजें हमारी डिस्ट्रक्टिव स्टेज में आ जाती हैं, कम होने लगती हैं, डिक्लाइन करने लगती हैं. Okay. Then there are many factors, है ना, जो कि आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. You may note down these. Number 1 is your heredity. Number 2, environment. Number 3, maturation. And number 4, learning. Heredity means ये वो characters हैं the children used to receive from their parents. Their growth and development depend on these traits, है ना, कि पर्सन कोई टॉल होगा, है ना, हाइट में शॉर्ट होगा, ये सारी चीजें उनको हेरिडिटरी कैरेक्टर से मिलती हैं. व्हाट इज द कलर ऑफ द आईज, उनके हेयर कैसे होंगे, ये सारी चीजें उनको किससे मिलती हैं, अपने पेरेंट्स से मिलती हैं. The environment plays an important role in the growth and development of the children. Environment provides opportunity to the children to develop their traits which they have received from their parents. ठीक है, सपोज एक पर्सन है जिसको बहुत अच्छा सिंगिंग का करेक्टर अपने पेरेंट्स से मिला है, हेरिडिटरी करेक्टर उसको मिल गया है ना, पर अगर उसको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता जिसमें कि वो अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर सके, है ना, पेरेंट्स उसके केवल पढ़ने पर ध्यान देते हैं और उसको सॉन्ग की बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं कराते हैं, तो क्या होगा, उसका जो ये ट्रेट है, ये कैरेक्टर है, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना. और वही चीज अगर उसको प्रैक्टिस के लिए मिल जाती है, जो चीज उसे हेरिडिटी में मिली है, वही चीज को अगर वो प्रैक्टिस करता है तो
वो बहुत ज्यादा हाइट्स पर पहुंच सकता है, राइट. देन कम्स मैच्योरेशन. It is necessary for a child to get mature to a certain level to learn and receive any progressive changes in him. Without that maturity level, it is not possible to receive new progressive changes in oneself. ठीक है, maturation बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, so that हम और नई नई चीजें अपने ग्रोथ में रिसीव कर सकें. Then learning, growth and development depends upon the learning capacity of the person. The more qualitative and the quantitative learning is, better the growth and the development. ठीक है, जितना हम किसी चीज को लर्न करते हैं उतना ही हम उस चीज में परफेक्ट होते चले जाते हैं. कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. ठीक है, कोई चीज अगर हमें आती है और उसको हम जितना प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें उतने ही परफेक्ट होते चले जाएंगे. और अगर कोई चीज हमें नहीं आती है, हमने वो चीज लर्न करी है ना, और प्रैक्टिस से हमारा उसमें इम्प्रूवमेंट ही होता चला जाएगा, राइट. देन कम्स योर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. ऑल डेवलपमेंट फॉलोज some principles that occurs continuously and varies in each individual. The development may be multidirectional. ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल में आपका क्या आ जाता है? पहला है सेफेलोकॉर्डल, मींस हेड से टो की तरफ आपका डेवलपमेंट होता है. ठीक है, डेवलपमेंट आपका हेड से स्टार्ट होता है एंड प्रोग्रेसेस टुवर्ड द फीट. ठीक है, और जब एक न्यूबॉर्न बेबी को हम देखते हैं तो उसका जो हेड है ना, वो और बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा दिखाई देता है. उसका जो प्रोपोर्शन है वो अलग दिखता है ना. देन proximodistal direction. ठीक है, center of the body towards the finger. Development start from the center to the outside body. First जैसे आपके organs हैं, हार्ट, स्टमक, ये डेवलप होते हैं. देन आपके शोल्डर, आर्म्स, ठीक है, इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. ठीक है, और ये चीज हम अपना मोटर डेवलपमेंट के केस में भी देख सकते हैं. ठीक है, कि जो डेवलपमेंट है एक सीक्वेंस में होता है. पहले जो चाइल्ड है वो ही लर्न्स टू सिट, पहले वो बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, देन इट स्टार्ट वॉकिंग. ऐसा नहीं होता है कि बिना बैठे या बिना खड़े हुए ही कोई चलने लगे. ओके, तो मीन्स डेवलपमेंट इज इन ए स्पेसिफिक पैटर्न. ओके, then development is a continuous process from the time of the conception, ठीक है, till death. उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहते हैं. ठीक है, जैसे हम अडल्ट एज भी गेन कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमारी बॉडी में बहुत सारे वियर एंड टियर होता रहता है, एंड दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. मीन्स डेवलपमेंट जो है आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है. फर्स्ट वाज डेवलपमेंट हैज ए स्पेसिफिक पैटर्न. ठीक है, सेकेंड है डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. ओके, देन थर्ड इज development is from general to specific. Okay, the development of the child is distinct from general to specific. For example, the child first tries to reach a thing by pushing his whole body and afterwards he uses his hands. ठीक है, उसको इतना नहीं पता होता है कि किसी चीज को वो हैंड के थ्रू भी पुश कर सकता है. तो अगर उससे पहले कोई चीज पुश करनी है तो उसके लिए वो पूरी अपनी बॉडी को यूज करता है, और लेटर ऑन वो स्पेसिफिक हो जाता है कि वो अपने हैंड्स को यूज करने लगता है. व्हेन हिज मसल्स बिकम स्ट्रांग ही लर्न्स टू यूज इवन फिंगर्स एंड थंब टू होल्ड अ थिंग. ओके, then next is, you may write children, different rate of development from for different parts. Okay, different body organs develop at a different speed.
एग्जाम्पल, ब्रेन डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड टिल 8 years, ठीक है, वाइल जो इंटेलिजेंस है वो आपकी 16 years ऑफ एज तक चलती है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. Heart, digestive system, legs and arms are developed till adolescent age. Okay. The next point is individual differences found in development. Every individual is unique and development processes is same, but at the same time its pace is different in different individuals. ठीक है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके डेवलपमेंट में देखे जाते हैं मींस जो उसका प्रोसेस है वो तो सेम है ना, ठीक है. जैसे हमने बताया कि पहले बच्चा बैठना सीखेगा, ठीक है, फिर खड़ा होना सीखेगा, देन विल स्टार्ट वॉकिंग. ये जो उसके सीक्वेंस है, जो डेवलपमेंट है वो तो सेम रहेगा, पर कौन सा बच्चा किस एज में बैठना सीखता है ना. कोई आपका 6 महीने में बैठ जाएगा, कोई 8 महीने में बैठेगा, ऐसे ही कोई जो है आपका 1 महीने सॉरी 1 year का होकर के इवन वॉकिंग सीख लेता है, और किसी को 1.5 years तक लग जाते हैं वॉक करने, ठीक है. तो ये चीजें आपका एक डिफरेंस है फाउंड इन दी डेवलपमेंट. चिल्ड्रन हु आर फास्ट इन फिजिकल एंड द मेंटल डेवलपमेंट, उनके और डेवलपमेंट्स भी रैपिड होते हैं. चिल्ड्रन हु आर मेंटली स्लो remain slow in the other development also. Then every stage has its own characteristic. Next point, please write it. Every stage has its own characteristics. The development span has been divided into various stages, and these stages have their own special characters. Example, prenatal period, babyhood, ठीक है, ये फास्ट डेवलपमेंट का पीरियड है ऑफ द चाइल्ड, while adolescent is characterized for sexual development and the social development. Then next point is every child passes through each stage of development. Right, children? Every child passes through each stage of development. Due to the specific and the systematic pattern of development, the child passes through every stage. It never happens that the child jumps over a stage to reach the another. ठीक है, जो पूरा प्रोसेस है वो वैसे ही चलता है एक के बाद एक, और हम कोई भी स्टेज को उसमें जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है. The next is every child reaches his maximum stages of development. You may write, children. Every child reaches his maximum stage of development. Every child has a different rate of development, but reaches the optimum limit of his own development sooner or later. ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी की स्पीड जो डेवलपमेंट की है वो कम और ज्यादा हो सकती है ना, पर वो अपनी एक जो लास्ट स्टेज है ना, कि उस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तक जरूर पहुंचता है ना. सपोज जैसे कोई पर्सन है, उसके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, तो उस बच्चे की हाइट भी अगर अच्छी निकल रही है, तो चाहे वो उसका हाइट बढ़ना लेट शुरू हो, ठीक है, बट ही विल अटेन द हाइट जो उसको लेनी है, वो पूरी की पूरी हाइट अपना ले ही लेगा. ओके. Many factors are involved in this process, like nutrition, proper guidance, encouragement. There are certain factors which hinder the process of development, जैसे कि malnutrition, bad company, unhygienic condition, and lack of motivation. ये आपके कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चाइल्ड होता है उसको रोक देते हैं, इतनी स्पीड से वो चीजें नहीं हो पाती हैं. ओके चिल्ड्रन. The features of the child. Childhood is a period of all-round development. According to the Piaget's theory, the cognitive development childhood consists of the 2 stages. ठीक है, चाइल्डहुड में केवल आपकी फिजिकल ग्रोथ ही नहीं होती है, बट ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का.
और अकॉर्डिंग टू पियाजेट इसकी 2 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन और द थॉट प्रोसेस. ठीक है, पहली है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि अर्ली चाइल्डहुड में पाई जाती है. देन कॉम्प्लीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि मिडिल चाइल्डहुड में पाई जाती है. The childhood can be divided into 2 stages. पहला है आपका early childhood, that is 2 to 7 years, and then is your middle childhood जो कि आपका 7 से 11 years तक चलता है, right? और उसके बाद आपका puberty या adolescent का पीरियड आ जाता है. अर्ली चाइल्डहुड 2 to 7 years का जो पीरियड है. Early childhood is the foundation period which extends from 2 to 7 years. ठीक है, and this stage has its own unique characteristics. Hence it is known by the different names. Y stage. ठीक है, बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं. प्री गैंग स्टेज. ठीक है, गैंग स्टेज मीन्स वो अपने ग्रुप बना लेते हैं और ये प्री गैंग स्टेज होती है. एक्सप्लोरेटरी स्टेज. ठीक है, हर क्वेश्चन में जैसे वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं ये चीज ऐसा क्यों हो रही है. एंड द प्री स्कूल स्टेज. इट इज ए पीरियड ऑफ स्लो physical growth and the rapid emotional, social, language and the cognitive development. ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल ग्रोथ तो आपकी बहुत ज्यादा नहीं होती है, पर जो और डेवलपमेंट है लाइक और इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है, जो बच्चा बोलना सीखता है, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन, वो काफी स्पीड से होता है. Then middle childhood. Middle childhood is also known as gang age. ठीक है, इसमें बच्चे अपना फ्रेंड्स बना के उनकी कंपनी में रहना पसंद करते हैं. पूरा उनका गैंग बन जाता है, पूरा पीयर्स का एक ग्रुप बन जाता है. तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गैंग स्टेज. Children at this stage develop foundation skills for building healthy relationship. Okay, they also develop cognitive skills. Their reasoning is rule based, but they still require concrete hands-on learning activities. ठीक है, उनका जो चीजें होती हैं वो रीजनिंग के ऊपर बेस्ड रहती हैं, पर अभी भी उनको कुछ कॉन्क्रीट डेवलपमेंट की जरूरत होती है, जैसे हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज. दे आल्सो लर्न वैल्यूज ऑफ देयर सोसाइटी. देयर फिजिकल ग्रोथ इज स्लो. जब तक कि वो प्यूबर्टी या एडोलेसेंट वाली एज में नहीं आते हैं तब तक जो उनकी ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती. ओके, और ये आपकी एलिमेंट्री स्कूल स्टेज होती है. And parents consider this stage as difficult as children give more importance to their friends than their parents. ठीक है, अब वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इंटरेस्टेड रहने लगते हैं. Then physical development. फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन सा डेवलपमेंट हम देखते हैं. हाइट, वेट. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द टीथ एंड बॉडी प्रोपोर्शंस. जैसे हमने बताया था ना कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो हेड है वो और बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में बड़ा लगता है, तो बॉडी प्रोपोर्शंस भी विद ग्रोथ चेंज होने लगते हैं. एक्सक्यूज मी. Physical features. Characteristics of the both early and the middle late childhood have been given below.
Okay, physical features and characteristics. Let us first come to the height. Early childhood, that is your 2 to 7 years का जो period है उसमें child grows to 2 to 3 inches taller per year. ठीक है, हर ईयर में उसकी हाइट जो है 2 से या 3 इंच के बीच में बढ़ जाती है, whereas मिडिल चाइल्डहुड में भी वो आपका 2 to 3 इंच एवरी ईयर ग्रो करता है, एंड बाय द एंड ऑफ द 11 ईयर्स, ठीक है, जो आपका ये पीरियड है मिडिल चाइल्डहुड का, ये 7 से 11 ईयर्स का पीरियड है, तो उसकी जो एवरेज हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली बॉयज की 146 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है और गर्ल्स की 147 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है. ओके, देन वी विल सी अबाउट द वेट. कि अर्ली चाइल्डहुड में जो वेट है वो 2 से 3 kg, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से बढ़ता है. बॉयज आर हैवियर देन गर्ल्स एट दिस टाइम. और हाइट में हमने देखा था तो किनकी ज्यादा थी, गर्ल्स की ज्यादा थी, राइट. सेम विद मिडिल चाइल्डहुड, एवरेज बॉडी वेट doubles during the middle childhood, gains approximately 2.3 से 3.2 kg weight वो पर ईयर गेन करते हैं. ओके, और अर्ली चाइल्डहुड में बॉयज एंड गर्ल्स के वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है. देन कम्स टीथिंग, डेवलपमेंट ऑफ द टीथ. अर्ली चाइल्डहुड में आपके 20 मिल्क टीथ आ जाते हैं, ठीक है. आपके उसके बाद फ्रॉम द 6th ईयर ऑनवर्ड्स these milk teeth started shedding. ये मिल्क दांत के जो आप सॉरी जो उनके दूध वाले दांत होते हैं वो जब ये 6 इयर्स के हो जाते हैं तो वो टूटने लगते हैं. एंड मिडिल चाइल्डहुड में दे हैव 28 परमानेंट टीथ इन द मिडिल चाइल्डहुड. आते आते तक उनके 28 परमानेंट टीथ डेवलप हो जाते हैं, और इस सब के लिए इनको गुड न्यूट्रिशन, कैल्शियम इंटेक उनकी गुड टीथ फॉर्मेशन में हेल्प करता है. The physical features or the characters. Middle childhood, their health is about 1/6 of the body size. Okay, and feet becomes longer, and body becomes less stocky and more slender. ठीक है, जो उनमें फैटीनेस दिखाई देती है उसके बजाय उनकी जो बॉडी है वो एक थिन या सिलेंडर शेप लेने लगती है. Then comes your motor development. Motor development, it refers to the change in the abilities to control body movements related to the gross and fine muscles. ठीक है, जैसे मैं बताया था कि शुरू में बच्चा पूरी बॉडी को पुश करता है या फिर अपने पूरे हाथ से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे ये डेवलपमेंट्स फाइन होते चले जाते हैं तो वो फिंगर्स के थ्रू अपनी चीजों को होल्ड करने लगता है, राइट. Motor abilities of the early childhood and the middle childhood has been given below. और अर्ली चाइल्डहुड में आपका जो मोटर डेवलपमेंट है ये आपका अच्छी स्पीड से होता है, गुड स्पीड से होता है, और चाइल्ड जो है नई नई स्किल्स लर्न करता है इस एज में इन ऑर्डर टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट. अर्ली चाइल्डहुड में 2 to 3 years में वॉक बैकवर्ड है ना, पीछे सरकने लगता है, पीछे चलने लगता है.
वॉक अप द स्टेयर्स 1 feet at टाइम ऑन 1 step, ठीक है। और उसके बाद इवन स्टेयर्स भी चढ़ने लगता है 2 to 3 years की एज में, पर एक पैर उसका एक स्टेयर पर रहता है और दूसरा दूसरे पर रहता है, लाइक दैट। जंप्स विद बोथ फीट ऑन वन प्लेस, ठीक है, जंपिंग करने लगता है, हॉपिंग करता है, बॉल को थ्रो करता है, रिमूव लोअर क्लोथ्स एंड स्लाइड जिप, है ना, जिप को भी ऊपर नीचे करने लगता है। टीयर्स पेपर, स्क्रबल, है ना, कोई पेपर दे दो तो उसको हरा से उल्टी सीधी लाइन खींचने लगता है। ओके, then motor skills or motor abilities between 3 to 4 years. Walks up and down the stairs like an adult, ठीक है, एक एडल्ट की तरह उसको जीना उतरना चढ़ना आ जाता है ऑल्टरनेटिंग फीट के साथ। देन स्किपिंग करने लगता है जो रस्सी कूदते हैं। कैच बॉल विद द हेल्प ऑफ द अपर बॉडी। पैडल्स एंड स्ट्रीट्स ट्राइसाइकिल, ठीक है, ट्राइसाइकिल को अच्छे से चलाने लगता है। बैलेंसेस ऑन टिप टो, अपने पंजों पर खड़ा हो जाता है, दान और बैलेंस कर लेता है बॉडी अपनी। कैन ओपन लार्ज बटन्स एंड स्नैप बटन्स, ठीक है, जो आपके चिट बटन टाइप से होते हैं उनको, या बड़े बड़े बटन होते हैं उनको खोलने लगता है। पेपर फोल्डिंग आ जाती है उसको थोड़ा बहुत। एंड ड्रॉज देयर फर्स्ट पिक्चर, कैन ड्रॉ टेडपोल पिक्चर ऑफ ए पर्सन, ठीक है, अगर उनसे किसी पर्सन को ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो वो टेडपोल जो की तरह की पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं, जैसे मेकअप होता है इस तरह की, उसका पेट गोल पेट सा बना दिया, फिर ऐसी छोटे छोटे हाथ से निकाल दिया, छोटे छोटे से पैर निकाल, ठीक है, इस तरीके से वो किसी पर्सन या ह्यूमन बीइंग की पिक्चर को ड्रॉ कर पाता है। बट पेपर फोल्डिंग भी स्टेज में आकर के वो करने लगता है 3 से 4 years की एज में। Then motor abilities 4 to 5 years. Catches ball with both hands, ठीक है, दोनों हाथों से बॉल पकड़ सकता है। रन फास्टर, साइकिलिंग थोड़ा और बेटर तरीके से फास्ट स्पीड से करने लगता है। ड्रॉज शेप्स, पेंट्स एक्सेट्रा, है ना, डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करता है और उन्हें कलरिंग भी करने लगता है। कैन स्ट्रिंग बैंड्स, बैंड्स को खींचने लगता है। uses scissors and cut along a line, ठीक है, कैंची को पकड़ के चलाने लगता है और अगर एक लाइन उसको ड्रॉ कर दी जाए तो उस लाइन के साथ साथ वो उसकी कटिंग भी कर सकता है। Then 5 to 6 years, runs with speed, okay, 12 feet per second, ठीक है, स्पीड से दौड़ने आ जाता है। skip sideways, ride bicycle with training wheels, कैन टाई लेसेस, शूज की लेसेस बांधने लगता है अपने। ड्रॉस पर्सन विथ 6 parts, ठीक है, जैसे मैं बताया ना कि उसमें तो उसको टेडपोल की तरह उसको बनाता है। अब वो किसी पर्सन की अगर फिगर ड्रॉ करने को कहा जाए तो वो उसको 6 parts में ड्रॉ करता है। देन ग्रैस्प पेंसिल अप्रोप्रिएटली, और करेक्टली अपनी पेंसिल को होल्ड करने लगता है लिखने के लिए, इन सब चीजों के लिए उसके जो मूवमेंट्स हैं वो बेटर हो जाते हैं। Then middle or the late childhood 7 to 8 years, इसमें क्या मोटर एबिलिटीज होती हैं उसकी, लेट अस सी। कैन थ्रो बॉल एट ए डिस्टेंस, ठीक है, बहुत दूर से बॉल को फेंक सकता है। कैन बैलेंस ऑन 1 foot फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए एक टांग से खड़े होकर के अपने को बैलेंस कर सकता है। वॉक्स ऑन टोज, टोज पर खड़ा हो सकता है अच्छे लंबे समय के लिए और बैलेंस कर लेगा। कैन हॉप एक्यूरेटली फ्रॉम स्क्वायर टू स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में जंप करके जा सकता है, जैसे टाइल्स बनी रहती है ना आपके घर में स्क्वायर स्क्वायर,
उसमें भी वो जंपिंग कर सकता है कि एक स्क्वायर से फिर दूसरे स्क्वायर में दोनों पैरों को एक साथ जंप करके वहां पर पहुंच जाए। कैन जंप 4 to 2 इंचेस हाई, ठीक है। और अगर हम हाइट में देखें, ऊंचाई में देखें, तो 4 से 12 इंचेस तक की हाइट को वो जंप कर सकता है। बिकॉज ऑफ मोर मसल्स बॉयज कैन जंप हायर, ठीक है, उनकी बॉडी ज्यादा मस्कुलर होती है, तो बॉयज ज्यादा ऊंचा कूद सकते हैं and run longer distances than girls. Okay, can jump rope, ठीक है, जैसे दो लोग मिलके रोप को पकड़ के चलाते हैं तो वो उनको भी जंप कर सकता है। बाउंस ए बॉल सेवरल टाइम्स, एक ही बॉल को हाथ में लेके जमीन के ऊपर बार बार बाउंस कर सकता है। देन स्केटिंग आ जाती है थोड़ी बहुत उसको। एंड ड्रेस वन सेल्फ इंडिपेंडेंटली, और अपने कपड़े अपने आप पहन सकता है और अपने कपड़े अपने आप पुट ऑफ भी कर सकता है, उतार भी सकता है, ठीक है। Then motor abilities between 9 to 10 years. Throw ball at a large distance. Catch a ball thrown high in the air, ठीक है, बॉल काफी डिस्टेंस से फेंकता है और एयर में ही बॉल को ऊपर ही बॉल को पकड़ लेता है। स्टॉप ए स्मॉल बॉल, ठीक है, छोटी बॉल आ रही है उसको वहीं रोक लेता है। जंप एज हाई एज वन सेल्फ, ठीक है, काफी ऊंची जो है जंपिंग करने लगता है। इंक्रीजेस रनिंग स्पीड 8 फीट पर सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में 8 फीट का डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। Then comes 10 to 11 years. They have more balance and strength, है ना, उनकी बॉडी अच्छे से बैलेंस्ड बॉडी बन जाती है, अच्छे से वो बैलेंस कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉडी बन जाती है, उनमें स्ट्रेंथ आ जाती है उनकी बॉडी। कैन स्किप कंटिन्यूअसली, ठीक है, लंबे समय तक स्किपिंग कर सकते हैं। कैन बैट ए बॉल, ठीक है, अगर कोई बॉल फेंकेगा तो बैट से उस बॉल को पुश कर सकते हैं। कैन रन एंड जंप हर्डल्स, है ना, हर्डल रेस होती है ना कि जिसमें हमने कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी तो वो उसको जो हर्डल्स है उनको जंप कर सकता है। देन कैन ड्रिबल अ बॉल, ठीक है, और बॉल की ड्रिबलिंग कर सकता है। Okay, children, this is all about the physical development of the different stages, right? हमने अपना 2 years से start किया and we have gone through the various development. Now we will see the social development. Social development refers to acquiring skills which allows a person to develop and maintain positive relationship with others. Means एक पर्सन में ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं कि वो दूसरे के साथ अच्छे से अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकता है। Social characteristics start developing from the early age when the child gives social response of smiling. During babyhood, their social circle is very limited. ज्यादा लोगों से उनका मिक्सअप नहीं हो पाते, ना वो पहचान पाते हैं सबको। During this stage, he starts going to the nursery school, and this stage is called the preschool age. His social circle increase होता चला जाता है क्योंकि वहां जाकर के वो different classmates से मिलता है। Before that, he was inside the family, और family member ही उसका एक तरीके से main social circle। He start making friends, okay, or another name of ये social development है। इसको हम डिफरेंट स्टेजेस में देखेंगे। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, प्रेफर प्लेइंग विद अदर्स, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ खेलना अच्छा लगता है उसको।
स्टार्ट शेयरिंग एंड कोऑपरेटिंग, और चीजें शेयर करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। डेवलप क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड बिगिन टू हैव बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंडशिप उनकी कई लोगों से होने लगती है, और साथ साथ वो कुछ जो लोग उनको बहुत पसंद आते हैं उनको वो अपना बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। एट द सेम टाइम दे आर क्विक टू ब्रेक फ्रेंडशिप, ठीक है, और कई बार वो बहुत जल्दी से फ्रेंडशिप को खत्म भी कर देते हैं ओवर ट्रिवियल इश्यूज, ठीक है। स्टार्ट टॉकिंग अगेन, कट्टी अब्बा ऐसे कर करके एक दूसरे से अपना लड़ाई करते हैं और फिर दोबारा से बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, लव कॉपिंग एक्शंस ऑफ द अदर्स, जैसा दूसरों को देखते हैं उनको इमिटेट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, at the age of 3, a girl wears a dupatta like her mother and keeps slipping it and putting back on her shoulder, है ना। और जैसे आप देखते हो ना कि दुपट्टा कई बार नीचे गिर जाता है, फिर वो उसको दोबारा से संभाल करके अपने शोल्डर पर रख लेते हैं। ओके, एंड do not believe in keeping secrets and often complained against each other to the teachers or their parents, ठीक है। आप देखते हो ना कि जब आप लोग बड़े हो जाते हैं, है ना, तो टीचर आपसे कोई चीज पूछेगी कि आपकी किसने ये काम किया है, तो आप लोगों में से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है कि आप लोग उसकी बात किसी को बताते ही नहीं, है ना। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो एक दूसरे की कंप्लेंट करने लगते हैं। इवन जैसे कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है एग्जाम में, तो मैम ये हमारा देख रहे हैं, है ना, ऐसे करके बच्चे शिकायत करने लगते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में भी, अपने टीचर से या पेरेंट्स से, ठीक है। और बड़े होके तो आप खूब चीटिंग कराते हो, खुद भी करते हो, बट यू नेवर टेल टू एनीवन कि हाँ, टीचर अगर पूछे कि नहीं नहीं मैम हमने नहीं बताया, हमने नहीं देखा, ये आप लोगों का एटीट्यूड है। ओके चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन, और इसके आगे का पार्ट विल कंटिन्यू लेटर ऑन। ओके चिल्ड्रन।